Good morning, guys. Yesterday we discussed about HSRP, the layer 7 protocol. Uses port number, uses multicast address. Done. HSRP is basically used for gateway redundancy. We always configure HSRP on which interface? LAN interface. Only on first router there is a need to define virtual IP. Virtual MAC is calculated with the help of group number. Other values are fixed. I showed you yesterday. One router is called active in a group, other is called there can be only one active and one. All other routers will remain in this state, listening state. After that, active router will be listening to virtual IP and virtual MAC. Or you can say active router is also having a ARP entry for virtual IP and virtual MAC. Active router is elected on the basis of priority is by default 100. If priority will tie, election will be done on the basis of highest IP address. Clear? By default, active router election will happen only once. Fine. Whenever you shut an interface on which HSRP is enabled, before shutting it down, router will send which message? Resign message. You remember? After that, we also discussed about which message? Cope message. Cope up nahi tha, cope hi tha. What do you mean by cope message? Cope message means a router is saying I want to become active. When a router is allowed to send cope message? When preemption is enabled. And when there is a need to enable preemption, when you are tracking WAN link. When you are tracking WAN link. हाँ वरुण, जिस राउटर का अपलिंक डाउन होता है वो कोप मैसेज सेंड करता है? नहीं भाई, जिस पे प्रेम्पशन एनेबल्ड होती है वो क्या सेंड करता है? कोप मैसेज. ठीक है? और कोप मैसेज का यूज क्या? प्रेम्पशन का यूज क्या? कि जब भी आप अपने कौन से लिंक को ट्रैक कर रहे हो? वैन लिंक. अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ प्रेम्पशन. बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर इज 3 seconds and hold timer is 10 seconds. And I also told you that also you can configure delay with preemption. Fine. And the last thing that we have discussed, we can also configure authentication just to avoid some user adding its own computer as a router in the HSRP group. Clear? What was the disadvantage? No load balancing. No load balancing. Clear? If yes, we can provide load balancing by configuring multiple groups. बताया था कल एक एग्जाम्पल. Clear? So guys, if we talk about VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP is the open standard protocol. It is actually a layer 3 protocol. It uses IP protocol number 118. Next thing, it uses multicast address 224.0.0.18. Next thing, in this case we have master and election criteria is still same on the basis of priority, but in case of VRRP, preemption is by default enabled. Preemption is by default. Hello time is 1 second and hold time is 3 seconds. Hold time is clear. All other things are same as
Same as HSRP. लिख क्यों नहीं रहा? वो लिख रहा सबके नाम का। दो लोग तो बैठे हैं। वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। करें भाई आगे स्टार्ट. So you can read about VRRP from your book. You can also configure VRRP on Cisco platform. Now guys, next protocol is GLBP stands for Gateway GLBP is the layer 7 protocol. It uses UDP port number 3222. Now, first of all, why we need GLBP? We already have a gateway redundancy protocol, then why we need GLBP? The reason is GLBP will provide us by default load balancing. Fine. Now guys, I think all of you know the importance of virtual IP and virtual MAC. In case of HSRP, in a group, how many virtual MACs were there? One. Because virtual MAC was decided with the help of group number. Now, what idea we have introduced in GLBP so that it can provide load balancing also? कुछ तो मैंने change किया है ना? Something I have changed in GLBP, which is providing us by default load balancing. Clear? That idea is I have categorized routers in two categories. मैंने routers को कितने categories में divide कर दिया? दो. ध्यान से सुनना बहुत आसान है. ठीक है. ऐसे बोलो आप दो तरह के राउटर हैं. टू टाइप्स ऑफ राउटर आर देयर. फर्स्ट आर AVG. AVG stands for Active Virtual. Now, what is AVG? AVG is a router
who is responsible for ARP replies. ARP के लिए रिप्लाई कौन देगा? क्योंकि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न. इन केस ऑफ HSRP वी हैव एक्टिव एंड स्टैंड बाय राउटर. एक्टिव राउटर ये ARP के लिए क्या देगा? रिप्लाई. ट्रैफिक भी फॉरवर्ड कौन करेगा? एक्टिव. बट इसमें लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट है. लोड बैलेंसिंग भाई इसमें GLBP में, इन GLBP लोड बैलेंसिंग इज बाय डिफॉल्ट. तो ट्रैफिक तो सारे फॉरवर्ड करेंगे. तो ARP का रिप्लाई कौन देगा? उसके लिए हमने क्या बनाया? AVG. क्या बनाया? अभी आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें कनेक्टेड कैसे हैं. आप इसको डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो. यू कैन डिफरेंशिएट इट लाइक दिस, दैट इन केस ऑफ HSRP एक्टिव राउटर वाज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग ARP रिप्लाईज एंड एक्टिव राउटर वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग और फॉर फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक. दोनों काम एक ही राउटर को करने दे. लेकिन इसमें क्या, सारे राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे. अब ARP के रिप्लाई कौन करेगा? एक्टिव वर्चुअल गेटवे. फाइन, बात करूंगा अभी समझ में आएगा सबको. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ARP रिप्लाईज. देखो, लेट्स से इन अ ग्रुप आई हैव 3 routers R1, R2, R3. Now you are enabling GLBP on these 3 routers. So let's say this router is elected as active AVG. This router is elected as standby AVG. This router will remain in this state. Clear? And how AVG is elected? By default priority is, if priority will tie, election will be done on the basis of interface IP. Preemption is by default. HSRP में क्या होती थी यार? डिसेबल. क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज इलेक्टेड? AVG. सबसे पहले क्या इलेक्ट होता है? AVG का काम क्या है? अब आप मेरे से अगर ये पूछो सर ये ARP रिप्लाई देने वाला राउटर मैं अलग से इलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा समझने की कोशिश करो. मैंने आपको क्या बताया कि GLBP के केस में लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट मिलेगी. इसका मतलब ट्रैफिक फॉरवर्ड तो हर राउटर करेगा. तो साला ARP की रिप्लाई कौन देगा? AVG. उसके लिए कौन सा रोल बनाया गया? AVG, एक्टिव वर्चुअल गेटवे. क्लियर भाई? अब सारे राउटर फॉरवर्डिंग कैसे कर पाएंगे ये हम देखेंगे. वी विल सी टू इट हाउ ऑल राउटर्स विल बी डूइंग फॉरवर्डिंग. हाँ जी, समझ में आई? तो सबसे पहला राउटर रोल हमने कौन सा पढ़ा है? AVG. AVG is elected on the basis of priority. Priority is by default 100. If there is a tie in priority, elections will be done on the basis of. Next thing, preemption is by default disabled. Done guys? चलें आगे. देखो भाई, अब सेकेंड टाइप ऑफ राउटर रोल इज एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर.
क्या लिखा मैंने, पढ़ो। वी कैन हैव in case of GLBP for same group we can have multiple virtual। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग मैक एड्रेसेस बन कैसे जाते होंगे, एग्री? वहां तो क्या था HSRP में दोनों पे सेम ग्रुप नंबर दो, सेम मैक बन गया। यहाँ पे अलग अलग कैसे बनते हैं? Here virtual MAC is combination of group number and forwarder number। Virtual MAC is combination of group number and as you enable GLBP on first router, forwarder number will be 1. If you enable GLBP on second router, forwarder number will be on third router, on fourth router 4. Clear? Now what will happen? Listen to me carefully। HSRP में क्या था? हेलो कौन भेजता है? सिर्फ एक्टिव और स्टैंड बाय। यार ये बातें नहीं चाहिए, पढ़ के आना चाहिए था आपको। कौन हेलो भेजता है? एक्टिव और। इन केस ऑफ GLBP एवरी राउटर विल सेंड हेलो। एक्टिव AVG ऑल्सो, स्टैंड बाय AVG ऑल्सो एंड लिसनिंग AVG ऑल्सो। क्लियर? इतना समझ में आया? सब लोग क्या भेजेंगे? हेलो। ठीक है भाई। अब क्या होगा देखो ध्यान से। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। लेट्स से दिस इज एक्टिव AVG, दिस इज स्टैंड बाय AVG, दिस इज लिसनिंग। डन। This is switch. These are users. Fine. So this router will act as AVF. This router will act as AVF. This router will act as AVF3। ऐसे होगा यार। जो भी आपका वर्चुअल मैक होगा ना लास्ट में यहाँ क्या होगा? जो भी वर्चुअल मैक होगा लास्ट में क्या होगा? जो भी वर्चुअल मैक होगा लास्ट में क्या होगा? This router will be listening to this virtual MAC, this router will be listening to this virtual MAC, and this router will be listening to this particular virtual MAC. And all virtual MACs will be known to all the routers, whether it is active AVG, standby AVG or listening AVG। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लो। अब बाय डिफॉल्ट सबसे पहले AVG इलेक्ट होगा, उसके बाद क्या इलेक्ट होगा? AVF। एक ग्रुप में कितने फॉरवर्डर्स हो सकते हैं? 4। इसका मतलब एक ग्रुप में कितने वर्चुअल मैक क्रिएट हो सकते हैं? 4। ठीक है। दूसरी बात ध्यान से, बाय डिफॉल्ट इन केस ऑफ HSRP हाउ मेनी राउटर्स वर सेंडिंग हेलो? एक्टिव एंड स्टैंड बाय। इन केस ऑफ GLBP एवरी राउटर विल बी सेंडिंग हेलो। भेजनी जरूरी क्यों है? Because every router is forwarding the traffic. Every router is in their hello packets, they will be forwarding their own virtual MAC. They will be forwarding their fine. So if they are exchanging virtual MAC, it means every router will be knowing each and every virtual MAC. Yes or no? हर router को सारे virtual MAC पता होंगे। Here in this case, how many virtual MACs are there? 3. R1 will be knowing how many virtual MACs? 3. R2 will be knowing also 3. R3 will be knowing also 3. अब वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। एक वर्चुअल मैक के लिए तो फॉरवर्डिंग करेंगे, बाकी 02 और 03 के लिए किस स्टेट में रहेंगे? क्लियर? ये 02 के लिए फॉरवर्डिंग करेगा, 01 और 03 के लिए किस स्टेट में रहेगा? ये 03 के लिए फॉरवर्डिंग करेगा, 01 और 02 के लिए किस स्टेट में रहेगा? ये बात समझ में आई? ये सबको समझ में आया? दिखाता हूं अब आपको। टोपोलॉजी कल वाली
So like all of you know, IP addresses are already assigned. 1.10, 1.20, 1. Virtual IP is 1.100. So let me enable GLBP on R1. GLBP. Group number 10. Virtual IP. Done. Debug. किस स्टेट में आ गया? देखो हेलो भेज रहा है, खुद की आईपी क्या थी 1.1, लिसनिंग स्टेट में था प्रायोरिटी 100, वर्चुअल आईपी 1.100, हेलो 3 सेकेंड होल्ड, हेलो एंड होल्ड टाइमर्स आर सेम एज HSRP. दिख रहे हैं? देखो अब शो GLBP, ये आउटपुट दिख रहा है. दिस आउटपुट इज ऑफ AVG. ये किसका आउटपुट है? एक्टिव वर्चुअल गेटवे. ग्रुप नंबर इज नो फॉरवर्डर नंबर, इट मींस आउटपुट इज ऑफ AVG. प्रायोरिटी क्या है? स्टेट क्या है? वर्चुअल आईपी क्या है? एक्टिव राउटर कौन है? स्टैंड बाय कौन है? ये AVG के बारे में बता रहा है. किसके बारे में? उसके बाद देखो एक वर्चुअल मैक बनाया हुआ है. विजिबल है? जब बड़ा करूं इसको, ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? और ये पार्ट किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? फॉरवर्डर नंबर को. किसको रिप्रेजेंट करेगा? फॉरवर्डर नंबर. ठीक है भाई? ठीक है बिलोंड. ठीक है भाई? Now when you enable GLBP on R2 will already get to know what virtual MAC R1 is using. R2 को पता चल जाएगा. हेलो पैकेट में फॉरवर्ड होता दिखाऊं? ग्रुप नंबर हेलो पैकेट. दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ AVG. इंफॉर्मेशन ऑफ प्रायोरिटी, स्टेट, हेलो टाइमर, होल्ड टाइमर, वर्चुअल आईपी. दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ AVF. वर्चुअल forwarder. State for which virtual MAC? 0. Clear? And what multicast address is used for sending its messages? 10. Clear भाई इतनी बात? अब देखो
मैंने R2 पे एनेबल किया GLBP, only with the help of this command GLBP will be enabled. There is no need to define virtual IP. Yes. It can learn virtual IP from hello packets. Show GLBP brief. देख लो अब, यहां देखो R1 पे आ गए, FA0/ ग्रुप नंबर 10, अभी भी अननोन ही आ रहा है, आ जाएगा स्टैंड बाय राउटर, थोड़ी देर रुक जाओ, आ गया ग्रुप नंबर, नो फॉरवर्डर इंफॉर्मेशन, इट मींस दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ AVG, प्रायोरिटी, स्टेट, वर्चुअल आईपी, एक्टिव राउटर, स्टैंड बाय. नाउ दीज टू इंफॉर्मेशन बिलोंग टू AVF. किससे बिलोंग करती है? कौन सा ग्रुप है? 10. फॉरवर्डर नंबर क्या है? फॉरवर्डर नंबर 1 क्या है? इसकी स्टेट क्या है? वर्चुअल मैक क्या है? चेक करो आर टेबल, कौन से मैक को लिसन कर रहा है? वर्चुअल मैक को कर रहा है लिसन, 0-1 को. R2 पे आ जाओ, शो GLBP ब्रीफ. R2 कौन से फॉरवर्डर के लिए एक्टिव है? 2 के लिए. शो IPR, ये किसको लिसन कर रहा है? ये भी वर्चुअल आईपी को लिसन कर रहा है, और साथ ही साथ कौन से वर्चुअल मैक को? 0-2. क्लियर? क्लियर? अब R1 पे आओ, देखो, शो GLBP. R1 knows about both forwarders, yes or no? R1 को दोनों फॉरवर्डर के बारे में पता, and R1 also knows this thing, for which forwarder it is active and or for which forwarder it is in listening state. My concern is R1 knows about both the virtual MAC addresses, yes or no? And what is the role of R1? Active AVG? Active AVG. What is the role of active AVG? To provide ARP replies. Now what will happen? Whenever any user will generate ARP, it will be received by active AVG. Now active AVG will be distributing these multiple MAC addresses. Now first way or first algorithm by which active AVG will distribute these MAC addresses is round robin. पहली एल्गोरिथम जिस वे से ये एक्टिव AVG इन मैक एड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो एल्गोरिथम कौन सी है? राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन मींस 1 by 1. हाउ मेनी मैक एड्रेसेस इट इज हैविंग? 2. अभी तो कितने हैं यार? अरे घसड़ू 2 पे ही चलाया, अभी 3 पे नहीं चलाया. कितने हैं वर्चुअल मैक? 2. तो पहले यूजर को पहला वर्चुअल मैक, दूसरे को, तीसरे को फिर पहला, फिर तीसरा. अरे घसड़ू बोला तो 2 पे ही चलाया, तेरे सामने तो 100 रह गया. ठीक है भाई, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को फिर पहला. इस वे में वर्चुअल मैक क्या करता रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट. अलग अलग यूजर को अलग अलग वर्चुअल मैक मिलेगा, तो अलग अलग यूजर अलग अलग राउटर से ट्रैफिक क्या करेंगे? फॉरवर्ड. ठीक है, दिखा देता हूं R3 पे एनेबल करके. अब GLBP 10 GLBP 10 IP. आगे इसके बाद भी तीनों वर्चुअल मैक की इंफॉर्मेशन दिख रही है, और ये किसके लिए फॉरवर्डिंग में है? 0-3 के लिए. क्लियर भाई? ठीक है भाई. अब देखो, यूजर 1 से पिंग करो, इसको कौन सा वर्चुअल मैक मिला है? 0-1. यूजर 2 से करो, कौन सा मिला? 0. यार देखो ना, ठीक है. 3 से करो, 0-3. ट्रेस करके देख लो कहां से जा रहा है ट्रैफिक. 1.1 से कहां से जा रहा है?
कहां से जा रहा है? तो लोड बैलेंसिंग है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? सबको बात समझ में आई? आगे चलूं? अब एक सड़ी सी बात, आप यहां भी क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक में देख लेना, कर लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भाई 2 टाइमर आएंगे। कितने टाइमर? एक क्या होता है और एक क्या होता है? टाइम आउट टाइम कितना होता है? करे भाई बात, व्हाट इज टाइम आउट टाइम एंड व्हाट इज रीडायरेक्ट टाइम। ठीक है जी। भाई देखो, ग्रुप में कितने राउटर हैं? 3। इन आवर ग्रुप वी आर हैविंग 3 राउटर्स, AVF1, AVF2, AVF3 and 3 virtual MAC addresses are there, and we have distributed those virtual MAC addresses to the users. Clear? Now what is the case? Let's say in any case a virtual forwarder goes down. कौन डाउन चला जाता है? Let's say R3 goes down. MAC address of R3 or virtual MAC of R3 is already distributed to users. There is no way to replace it. Users के पास तो वो रहेगा ही. Agree? Now what is my concern? If a forwarder goes down, for how much time a second forwarder will be doing for forwarding for my forwarder? मैं क्या कह रहा हूँ? Let's say 3 forwarder हैं. ये भाई सिस्टम, मैं और मनोज. ठीक है भाई? Forwarder number 1, forwarder number 2, forwarder number 3. ये अलग वर्चुअल मैं आपको फॉरवर्डिंग कर रहा है, मैं अलग की कर रहा हूँ, ये अलग की कर रहा है. ठीक है भाई? ये मनोज डाउन हो जाता है, तो इसका जो वर्चुअल मैक है यूजर्स के पास अभी भी है, अभी भी है ना, तो यूजर्स तो ट्रैफिक उसी वर्चुअल मैक पे फॉरवर्ड करेंगे. कंसर्न क्या आता है? मनोज तो डाउन हो गया, अब मनोज के लिए फॉरवर्डिंग या तो सिस्टम करेगा या मैं करूंगा, या फॉरवर्डर नंबर 1 करेगा या फॉरवर्डर नंबर 2 करेगा. कितनी देर तक करेगा? टाइम आउट टाइम के इक्वल. कितनी देर तक करेगा? 4 घंटे. ठीक है जी. दोबारा बता रहा हूं, अगर एक फॉरवर्डर डाउन हो जाता है तो दूसरा फॉरवर्डर उसके लिए फॉरवर्डिंग कितनी देर तक करता है? 4 घंटे. कितनी देर तक करता है? 4 घंटे तक. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब आर्प रिप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कौन सा राउटर रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्टिव एवीजी. कौन सा राउटर? तो लेट्स से सिस्टम है एक्टिव एवीजी, मैं हूं स्टैंड बाय एवीजी और ये लिसनिंग एवीजी. ठीक है भाई? अब कोई भी यूजर आर्प जनरेट करेगा. ठीक है, अब आपका फॉरवर्डर नंबर 3 तो डाउन हो चुका है ना, लेकिन फॉरवर्डर नंबर 3 के डाउन होने के बाद भी एक्टिव एवीजी अगले 10 मिनट तक उसका मैक एड्रेस आर्प रिप्लाई में देगा. उसके बाद देना बंद कर देगा. उसके बाद देना बाय डिफॉल्ट तो तीनों को वर्चुअल मैक दे रहा है आर्प रिप्लाई में 1 बाय 1. पहली बार आर्प आती है पहले गेटवे का, दूसरी बार आती है दूसरे गेटवे का, तीसरी बार आती है तीसरे गेटवे का. द थिंग इज ये वर्चुअल गेटवे, सॉरी ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे कितनी देर बाद उस फॉरवर्डर का मैक एड्रेस देना बंद कर देगा जो फॉरवर्डर क्या हो गया? डाउन.
कितनी देर बाद? 10 मिनट बाद उस टाइम को क्या बोलते हैं? रीड टाइम। ठीक है भाई, चले आगे। ये टाइमर समझ में आ गए दोनों? एवीजी 10 मिनट बाद ही बंद कर देगा मैक एड्रेस को देना यूजर्स को, तो फिर 4 घंटे की जरूरत क्या है? भाई जिन यूजर्स के पास है उनको तो फॉरवर्डिंग करनी है ना। तो ऐसे 4 ही क्यों डिसाइड किया? मतलब भाई बता देता हूँ तेरे को, तेरा राउटर की जो आर्क टेबल होती है ना वो 4 घंटे के बाद रिफ्रेश होती है। हाँ ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई कि भाई ये दोनों टाइमर क्या है। अब प्रॉब्लम देखो, आखिरी बात है जीएलबीपी के बारे में। ठीक है जी, प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम क्या है? वैन लिंक को कैसे ट्रैक करें? लेट्स से मेरे R3 का वैन लिंक डाउन हो जाता है। ठीक है भाई, if WAN link of R3 goes down, there will be problems. What are those problems? That how we will track WAN link? What is my concern here? In case of HSRP, we were having priority, if you remember. हमारे पास क्या थी? And all of you know active and standby routers were elected on the basis of priority. But here in case of GLBP, active AVG are elected on the basis of priority, not AVF. Not AVF. Clear? So let's say if WAN link of R3 goes down and if we decrease priority, priority will only manipulate AVG, not AVF. So what we have here? Wait. What we have here? Wait. Wait is used in GLBP. Used to define क्या लिखा मैंने? कब राउटर एवीएफ की तरह एक्ट करेगा और कब राउटर एवीएफ की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? Wait is used in GLBP used to define when router will act as AVF and when, क्योंकि प्रायोरिटी तो यहां किसको डिफाइन कर रही है? AVG को। किसको डिफाइन कर रही है?
Let's say R1, R2, R3. By default weight is 100 on all the routers. Weight by default क्या होता है हर राउटर पे 100. Now what we will be doing? I will be configuring minimum value and maximum value for weight. Let's say minimum is 95, maximum is it means if value go beyond minimum value, router will not act as AVF. Router will not act as अगर 95 से वेट कम हो जाता है तो राउटर क्या नहीं एक्ट करेगा AVF. राउटर कैसा एक्ट नहीं करेगा AVF. देखो I will define decrement value as 10 and I will track my WAN link. Whenever this WAN link goes down, weight will be decremented by new weight will be. If weight is not in between 95 and 100, router will not act as AVF. So when weight is 90, router will leave its which role? Which role? And other router will start forwarding for this router. ठीक है जी. दूसरा राउटर इस राउटर के लिए क्या स्टार्ट कर देगा फॉरवर्डिंग. क्या स्टार्ट कर देगा फॉरवर्डिंग. क्लियर भाई. मैंने हाँ जी पूछो. बिल्कुल आपको भी कोई डाउट था यार. मैंने क्या बोला HSRP के केस में हम किसको डिक्रीमेंट करा देते थे प्रायोरिटी को, क्योंकि प्रायोरिटी एक्टिव और स्टैंड बाय को डिफाइन कर रही थी. यहाँ पे प्रायोरिटी किसको डिफाइन कर रही है AVG को, नॉट AVF. ठीक है जी. तो AVF को डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं वेट का. हम क्या करेंगे एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर देंगे. इफ वैल्यू लाइज इन बिटवीन दैट वैल्यू दैट राउटर कैन एक्ट एज AVF, अदरवाइज नॉट. देन वी विल ट्रैक आवर WAN लिंक एंड वी विल डिक्रीमेंट आवर वेट. इफ वेट गो बियॉन्ड if weight go less than 95, router will not act as AVF. Router will not act as AVF. ठीक है जी. तो जैसे ही WAN लिंक डाउन गया, वेट क्या हो गया 90, राउटर अपना AVF रूल क्या कर देगा छोड़ देगा. दूसरा राउटर उसके लिए फॉरवर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा. एंड हेयर प्रिम्पशन इज enabled बाय डिफॉल्ट. enabled बाय डिफॉल्ट प्रिम्पशन इज enabled. ठीक है भाई. देखो भाई अब इधर देखो. दिस इज द कमांड टू चेक चेंज टाइमर्स. आप हेलो टाइम भी चेंज कर सकते हो, होल्ड भी चेंज कर सकते हो, रीडायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो और टाइम आउट भी चेंज कर सकते हो. तो ट्रैक आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले. देखो शो GLBP. ये दिख रहे हैं कितने फॉरवर्डर हैं टोटल 3. फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए किस स्टेट में है और बाकी फॉरवर्डर्स के लिए लिस्ट नहीं. एक और चीज दिखा देता हूं आपको. प्रिम्पशन क्या है लेकिन डिले कितना डला हुआ है. मतलब मैं एक फॉरवर्डर दूसरे फॉरवर्डर का रोल लेने से पहले कितनी देर वेट करेगा. मतलब मैं दूसरे फॉरवर्डर के लिए फॉरवर्डिंग तो करूंगा पर कितनी देर वेट करूंगा. तो मैं इस डिले को क्या कर सकता हूं खत्म कर सकता हूं. लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है. तो लोग सोचते हैं यार इतना डिले क्यों लग रहा है. बाय डिफॉल्ट डिले क्या होता है कॉन्फ़िगर्ड होता है. कितना कॉन्फ़िगर्ड होता है 30 सेकेंड. देखना आप ध्यान से. तो सबसे पहले तो क्या क्रिएट करेंगे ट्रैक. ऑब्जेक्ट नंबर क्या क्रिएट करो. कौन से इंटरफेस को ट्रैक करूं, किसको ट्रैक करूं इस पे. डन. GLBP 10 वेटिंग. वेटिंग मैक्सिमम वैल्यू 100. अपर वैल्यू 100. सॉरी पहले डिफाइन करो. लोअर वैल्यू 95, अपर वैल्यू 100. GLBP
10 वेटिंग ट्रैक ऑब्जेक्ट नंबर क्या था? डिक्रीमेंट वैल्यू डन भाई। शो जीएलबीपी। अब देखो वेट क्या कॉन्फ़िगर्ड है, थ्रेशोल्ड क्या है, लोअर और मैक्सिमम वैल्यू देखो, डिक्रीमेंट वैल्यू क्या है 10। ठीक है भाई। अब एक और कमांड चलाऊंगा आपके सामने, GLBP 10। हाँ जी यार, कितना वेट कम करना है अगर वैन लिंक डाउन जाएगा? फॉरवर्डर प्रेम्प्ट डिले मिनिमम। ठीक है भाई, ये कमांड से मैंने डिले कितना कर दिया? 0। तो एक सही करके दिखा दूं, यहां डिले 0 कर देता हूं हर राउटर पे। GLBP 10 फॉरवर्डर प्रेम्प्ट डिले मिनिमम, GLBP 10 फॉरवर्डर प्रेम्प्ट डिले मिनिमम। डन भाई। यूजर 1 का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट R1 से जा रहा है, प्रूव करूं? दिख रहा है? लेट से R1 का वैन लिंक डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पिंग लगाते हैं कॉन्टिन्यूस। लगा दी, जा रहा है ट्रैफिक। लेट से R1 का वैन लिंक क्या चला जाता है, डाउन। गया ट्रैफिक, चला गया ना? देखो ये देखो, ये बन गया एक्टिव। किसके लिए? फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए कौन एक्टिव बन गया? R3। यहां देखो, शो GLBP ब्रीफ। ये कितने वर्चुअल मैक के लिए एक्टिव है? 2 के लिए दिख रहा है ना, 1 के लिए भी और 3 के लिए। अब ये 1 के लिए फॉरवर्डिंग कितनी देर तक करेगा? 4 आवर्स तक। ये देखो 1 के लिए भी एक्टिव है और 3 के लिए भी एक्टिव है। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? पक्का? आर यू श्योर? अब अगर आप R1 पे जाके देखोगे, शो GLBP, ये तीनों फॉरवर्डर के लिए देखो किस स्टेट में पड़ा हुआ है, लिस्टिंग में। ऐसा क्यों है? इसका अपना वेट क्या है? 90। इसका अपना वेट क्या है? 90। ठीक है भाई, इस तरह से क्या काम करता है GLBP। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में किसी को भी? बताओ। यार वो इलेक्शन इसका बैक एंड प्रोसेस है, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, आपके सिलेबस में नहीं है यार, आपके बुक में दिया हुआ। अगर मैं आपको बताऊं होता वो इलेक्शन भी किसके बेसिस पे है? प्रायोरिटी के बेसिस पे। बता देता हूं, बैक एंड पे एक प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट, हर AVF की प्रायोरिटी होती है 167। ठीक है यार, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। मतलब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं ना आपसे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास पूछने के लिए, बट मैं इतना डीप शिट में डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? मेरे को सिर्फ आपको ये समझाना है कि GLBP HSRP से अलग क्या है। GLBP में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वरना यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं मैं। बता देता हूं आपको, जैसे कि GLBP के केस में जो AVF डिसाइड होता है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। बाय डिफॉल्ट हर AVF की प्रायोरिटी होती है 167। प्रायोरिटी तो सेम हो गई। अब जैसे ही एक राउटर अपना AVF रोल छोड़ता है ना, वो अपनी प्रायोरिटी अपने आप 135 कर लेता है बैकएंड पे। ठीक है, अब R2 और R3 में से हाईएस्ट IP किसकी थी भाई? 3 की ना, तो 3 बनाना एक्टिव AVF। क्योंकि R1 ने तो अपनी प्रायोरिटी कितनी कर ली होगी AVF के लिए? 135। उन दोनों में से अब हाईएस्ट किसकी रह गई? 3 की IP। प्रायोरिटी तो क्या है? 167, दोनों की सेम है। ठीक है भाई,
ये देखो ये लिखे हुए हैं, रीडायरेक्ट टाइम कितना लिखा हुआ है, फॉरवर्डेड टाइम आउट टाइम कितना लिखा हुआ है, 14,400 का मतलब होता है 4 घंटे। कन्वर्ट कर लेना घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो पढ़ लेना GLBP एक बार घर जाके। स्टैकिंग बढ़ा दूं अब? सिर्फ एक ओवरव्यू देना है आपको, स्टैकिंग होती क्या है, कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब तक आप किसकी रिडंडेंसी पढ़ रहे थे? ठीक है, अब मैं किसकी रिडंडेंसी पढ़ाऊंगा आपको। देखो यार, कंसर्न क्या है मेरा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इधर देखो सब लोग, बहुत मुश्किल बात नहीं करेंगे, बहुत आसान बात करेंगे। लेट्स से दिस इज योर एक्सेस लेयर स्विच। विच लेयर स्विच? ठीक है भाई। लेट्स से इट इज कनेक्टेड टू 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। किससे कनेक्टेड है? सो ऑल ऑफ यू नो हियर माय गेटवे विल एग्जिस्ट, और यहीं पे मैं HSRP चलाऊंगा। 2 गेटवे होंगे ना, और क्या चलाऊंगा? HSRP। बट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो टू प्रिवेंट द लूप आउट ऑफ दीज 2 अपलिंक्स, 1 अपलिंक विल बी इन ब्लॉकिंग स्टेट। एक अपलिंक किसमें होगा? इसका मतलब ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास 2 अपलिंक है, मैं कितने अपलिंक्स को यूज कर सकता हूं? एक, मैक्सिमम 1। एग्री? अब मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, यार मेरे पास 2 लिंक है, मैं एक ही लिंक को यूज कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे गेटवे के लिए क्या प्रोवाइड करनी पड़ रही है? रिडंडेंसी। मेरे को HSRP प्रोटोकॉल चलाना पड़ रहा है। इन सब चीजों को हम रिमूव कर देंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को एक स्विच की तरह एक्ट कराएंगे। कितने स्विचेस की तरह? क्या एक्सेस लेयर स्विच को क्या लगे, वो ऊपर मल्टीपल नहीं, एक ही सिंगल स्विच से कनेक्टेड। तो वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम मल्टीपल स्विचेस को एक स्विच की तरह एक्ट कराएंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्टैकिंग। क्या बोलते हैं? अब स्टैकिंग करने से होगा क्या, ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के दोनों स्विच को स्टैक करके ईथर चैनल बना दूंगा। क्या बना दूंगा? ईथर चैनल बनाने से बेनिफिट क्या मिलेगा? कोई भी लिंक ब्लॉक नहीं होगा। एग्री? अब जब ऊपर एक ही स्विच है तो HSRP चलाने की भी जरूरत है। जब एक ही गेटवे है, एक्चुअली तो गेटवे कितने हैं? 2। मैंने दोनों स्विचेस को क्या कर दिया? बाइंड। क्या कर दिया? बाइंड। बाइंड करके क्या बना दिया? स्टैक। आई एम कंबाइनिंग बोथ स्विचेस एंड आई एम फॉर्मिंग अ स्टैक। एक स्टैक में आप मैक्सिमम 16 स्विचेस रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ कितने स्टैक किए हैं? 2 कर दिए। तो इससे ना बहुत सारी चीजें रिमूव हो गई कि मेरा कोई अपलिंक ब्लॉक नहीं होगा, मेरे को कोई गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच कैसे एक्ट करेंगे? एज अ सिंगल स्विच। एज अ सिंगल स्विच। अब आप पूछोगे सर स्टैक करते कैसे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखो यार, बता देता हूं आपको। स्टैक है ना, प्लेटफॉर्म बेस्ड टेक्नोलॉजी है। क्या है? ये बात आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगी कि प्लेटफॉर्म बेस्ड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। जैसे नेक्सस सुना है? सुना होगा सबने। नेक्सस के भी स्विच ही होते हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री को नेक्सस पे क्या बोलते हैं? स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। नेक्सस प्लेटफॉर्म पे भी लूप प्रिवेंट होती होगी, नेक्सस प्लेटफॉर्म पे भी ईथर चैनल बनता होगा, बट उनके नाम क्या है? मैंने उन टेक्नोलॉजीज को नाम क्या दे दिया है? डिफरेंट। अब क्या है, 3750 की अगर मैं बात करूं कौन से प्लेटफॉर्म की, जो आपकी लैब में अवेलेबल। ठीक है भाई, अगर आपको 3750 2 स्विचेस को स्टैक करना है, उसके लिए आपको अलग से स्टैक केबल चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को आप बोल देते हो स्टैकिंग। क्या करना पड़ता है आपको? डिवाइस पे स्टैक पोर्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? मतलब अलग से हार्डवेयर आएगा, अलग से केबल्स आएंगे, तब 2 डिवाइसेस क्या होंगे? स्टैक होंगे। हो गए। लेकिन अगर सेम काम मुझे 4500 सीरीज के स्विच पे करना है,
तो वहां उस टेक्नोलॉजी को VSS बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्चुअल स्विचिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्विचिंग। उसमें मैं क्या करता हूँ, दो स्विच लेता हूँ, उनके बीच में दो ईथरनेट केबल लगाता हूँ, जो नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं उनका एक बंडल बना के उसी से उनको क्या कर देता हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 3750 पे स्टैकिंग करने का तरीका अलग है, 4500 पे स्टैकिंग करने का तरीका अलग है, और दोनों के नाम भी अलग अलग है, लेकिन काम क्या है? 6500 पे भी सेम टेक्नोलॉजी को VSS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ 3750 पे क्या एग्जिस्ट करती है? स्टैकिंग। या फिर 2950 पे क्या एग्जिस्ट करती है? स्टैकिंग। 3750 से जितने भी ऊपर के प्लेटफॉर्म है सब पे क्या एग्जिस्ट करता है? VSS। काम क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ स्टैकिंग? जस्ट टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी इन द नेटवर्क। जस्ट टू रिमूव देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल गेटवेज हैं, HSRP चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है। There is no need to run multiple things, run a single thing। देखो ना, मेरा डायग्राम कितना सिंपल हो जाएगा। अभी तो डायग्राम ये है, इसमें एक पोर्ट रूट पोर्ट होगा, एक ब्लॉक होगा, ठीक है। यहाँ आप क्या चलाओगे? यहाँ भी एक गेटवे बनाओगे, यहाँ भी क्या बनाओगे? गेटवे। एग्री? यहाँ से दो ऊपर अपलिंक भी तो जाएंगे ISP की तरफ। यहाँ भी लेयर 3 पोर्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ भी लेयर 3 पोर्ट बनाना पड़ेगा। Here you also have to configure routing protocol, here you also have to configure routing। मैं डिजाइन सिंपल कर देता हूं। देखो, एक स्विच, ये दोनों स्विचेस का क्या है? एक ही अपलिंक जा रहा है किस पे? यहां क्या बना दिया? दोनों लिंक किस में है? नो, यहीं सिर्फ क्या चलाना है? प्रोटोकॉल। डिजाइन क्या हो गया? सिंपल। क्लियर भाई? ये फायदा है क्या कॉन्फ़िगर करने का? स्टैकिंग। भाई किसी भी स्विच से अपलिंक ले जा। अब ये दोनों स्विचेस कितने हैं? स्विचेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। इनका फॉरवर्डिंग प्लेन अपना अपना होगा, कंट्रोल प्लेन। मतलब ऐसे होता है, अगर मैं स्टैक के अंदर वर्किंग की बात करूं, किसकी? तो कंट्रोल प्लेन एक ही स्विच हैंडल करेगा, कंट्रोल प्लेन एक ही स्विच हैंडल करेगा। वो बात समझने के लिए आपको एक अलग लेवल पे आना पड़ेगा। नहीं आएगी यार ऐसे समझ में। मैं कहूं यहां से BPDU जाएगा, ये स्विच इसको दे देगा BPDU, किसको समझ में आएगा? किसी को समझ में नहीं आएगी ये बात। कैसे दे दिया BPDU, क्यों दे दिया? अब BPDU अगर दोनों स्विच ने अलग अलग ही हैंडल करना था तो अलग अलग स्विच ने एक्ट कर लेते। वो कंसर्न मैं कह रहा हूं, आप इतनी चीज को पहले समझो, तभी मैं आपको आगे वो चीज समझा पाऊंगा। तो हम CCI में एक VSS के ऊपर क्या देते हैं? समरी देते हैं। There I will be explaining this thing that how control plane is handled by a single switch। क्लियर भाई? वहां डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल प्लेन एक सिंगल स्विच कैसे हैंडल करेगा। बाकी आप देख लेना अपनी किताब में, कुछ और आपको मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अगला कंसर्न क्या है भैया मेरा? इधर आओ, ध्यान तो लगवाऊंगा तेरे, रुक जा तू। टॉपिक का नाम है ट्रिपल ए। सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि ट्रिपल ए क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। शायद CCNP राउंड में पढ़ा था हमने, ठीक है जी। फिर देख लेते हैं एक बार। बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क में जितनी भी आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हो सारी पर डिवाइस बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है? लेट्स से भाई मेरे नेटवर्क बुल्स में 5 स्विच लगे हुए और एक राउटर है, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया। तो फॉर दोस 5 स्विचेस एंड 1 राउटर I have to create remote access on each and every device। remote access का मतलब telnet या फिर SSH। I have to create telnet and SSH for each and every device। Let's say I have IT team here। मेरे पास यहाँ एक IT team है। In that IT team I have 10 people। So I have to create 10 users name and passwords on each and every device। Yes or no? Yes। And whenever a new guy is added to the IT team, I have to update that list। Yes or no? On each and every device। Now the thing is, here we just have 5 devices in the network, but try to understand or try to think of a case where we have number of devices in thousands। Let's say if I talk about there is a project of Bank of America। Bank of America सुना आपने? उसके नेटवर्क में लगभग 68,000 डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब 68,000 डिवाइसेस पे यूजर नेम और पासवर्ड मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल नहीं है। So what do we want? We want authentication to be centralized। We want
Because it is not possible to create a big database on each and every device. For that purpose we use AAA. AAA stands for authentication, authorization, account. AAA can be configured with the help of ACS server. AAA किसकी help से configure कर सकते हैं हम? What is ACS server? A end machine can act as ACS server. A end machine can act as, and you can configure those devices to authenticate with that ACS server whenever any user will come for login. जब भी कोई यूजर लॉगिन के लिए आए तुम उस सब डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट कर दो कि तुम्हें ऑथेंटिकेट किससे करना है? ACS. ACS stands for Access Control Server. ACS stands for Access Control Server. ये कौन है? ACS stands for Access Control Server. Any problem in understanding this? ACS के बारे में पता चला क्या होता है ना? How many of you have heard about these protocols? TACAX, Radius. Radius सुना? TACAX और Radius दो प्रोटोकॉल हैं. When these protocols are used, whenever your device has to communicate with the ACS server. देखो एक बात बताओ. Whenever I have to ping, which protocol is used? ICMP. Whenever you have to, let's say you have to remote access, you can use two protocols, either Telnet or SSH. In the same way, when a switch or router has to communicate with ACS server, there must be some protocol which is responsible for this communication. That protocol is TACAX or Radius. TACAX is a Cisco proprietary protocol and Radius is a open standard protocol. Radius is a open standard protocol. There are many more things, you can read it from your book, but again my concern is you can only understand about AAA if you know about privilege level, if you know about parcel view, how technologies evolved, that what was the need, that why we need AAA. Practical of AAA is basically covered in CCNA security. Not in CCNP switch. मैं करके दिखा सकता हूँ बट उसका कोई बेनिफिट नहीं. आपसे कभी भी कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कि AAA क्या